वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ड के हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 25 मार्च 1914 इन ईओवा स्टेट ऑफ अमेरिका। Wheat production has been doubled in India, Pakistan, and Mexico by high-yielding variety of seeds developed by him. Borlaug is among those 7 persons in the world who got all the three awards: Nobel Prize, Presidential Medal of the Freedom, and Congressional Medal, Gold Medal. Okay, Borlaug has been honored with Padma Vibhushan of the India in 2006. ये याद रखिएगा, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर MS Swaminathan. Under his leadership, high-yielding varieties of wheat has been successfully developed in India, and use of the high-yielding variety of the seeds started in India. Apart from this, special emphasis has been given on the increased use of the fertilizer, adequate development of the irrigation facilities. Then, the program for the use of the developed seed in India was started by the cooperation of the Rockefeller Foundation of the USA. याद रखिएगा। First stage of the Green Revolution was carried out in India from 1966 to 81. ये लगभग सबको पता होता है। And second stage was implemented in the period of 1981 से 1995. And its third stage was started in the year 1995 and covered almost all the areas of the country. Almost. अब एग्जाम में दे देगा ऑल द एरिया ऑफ द कंट्री, नहीं ऑलमोस्ट लगाए वहाँ पे। द मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज व्हीट। तो आप ध्यान देंगे कि आपसे एग्जाम में दे देगा कि भाई मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप राइस थी, तो राइस मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप नहीं है, मोस्ट बेनिफिटेड क्रॉप थी व्हीट। बिफोर रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट ऑल ओवर इंडिया वाज 12.3 million tons, whereas in 2002 it became 69.68 million tons. In 21 is 106.8 million tons. तो बेसिक सी बात है कि मतलब ये काफ़ी मतलब मल्टीपल 10 टाइम्स इस बेस पे बढ़ी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। द इंक्रीज अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द हाई यील्ड per hectare. After wheat, highest impact of the green revolution was seen on the rice cultivation. The main plant in the green revolution was the wheat of the Mexican species, which was brought from the Borlaug's International Maize and Wheat Improvement Center. इसको बोलते हैं CIMMYT. ओके, बॉरलॉग इंटरनेशनल मैजे एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। याद रखिएगा ये चीज़। टिल 2021 4th A, the production of the wheat reached up to 3507 kilogram per hectare. High yielding variety of the seed fertilizer, irrigation and use of technology, marketing and industrialization of the agriculture is known as the Green Revolution. On 28th July 2000, the central government launched a new national agriculture policy. Under this policy, the concept of the Rainbow Revolution was proposed. In this policy, all the revolutions directly or indirectly related to the agriculture activities are included. देन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? फूड प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, वेरियस रेवोल्यूशन एंड इट्स एरिया। देखो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जैसे गोल्डन क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। वाइट क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। ब्राउन क्या है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ब्लू क्या है? ब्लू फिश ओशियन इससे रिलेटेड। रेड क्या है? मीट टोमेटो प्रोडक्शन। ब्लैक क्या है? पेट्रोलियम काला। राउंड क्या है? पोटैटो प्रोडक्शन। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन। Pink revolution, onion production and export of meat. Okay. Then national zero till seed cum fertilizer developed by the G.V. Pant University of Agriculture and Technology, जो कि इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। This machine enables to sow directly in paddy harvest without prior seed preparation. Okay. Then question देखते हैं। Green Revolution was a result of the adoption of the new agriculture strategy, which was introduced in the 20th century during decades of क्या 70s 60 समथिंग में हुआ था ना, जैसा भी हमने ऊपर देखा था 66 के आसपास, तो 70s का डिकेड हुआ ना, इसलिए। The term Evergreen Revolution has been used for the increasing agriculture production in India by MS Swaminathan. इंडिया में तो MS स्वामीनाथन नहीं किया था ना। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज फ्रॉम विच कंट्री? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज नॉर्मन ई बोरलॉग है, हाँ है ए ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन? कौन इसमें से? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, कई बार क्वेश्चन आया सब। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स क्या?
हाई यील्ड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द लेट 60s ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या है इसमें? सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, ओके, और टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब क्या ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, मतलब ये नेचर है। जैसे इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो नहीं, तो सीड, फर्टिलाइजर, वाटर, टेक्नोलॉजी। ओके, बाकी हाई वैरायटी ऑफ सीड भी था। ओके, बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये है, बीपीएससी क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? व्हीट प्रोडक्शन, मेनली व्हीट था। ओके, राइस, पल्स, ऑयल ये सब देंगे, लेकिन व्हीट मेनली था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? कौन सी है? व्हीट। सिंपल। देखो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें? व्हीट में। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोग्रेस्ड मैक्सिमम इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। विच वॉज द मेन क्रॉप यूज इन द ग्रीन रेवोल्यूशन? कौन सी व्हीट है ऑप्शन में? ये मैक्सिकन व्हीट। ओके, अब देखो इसमें कई से दो व्हीट, अमर व्हीट, मैक्सिकन, तो मैक्सिकन व्हीट था। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द व्हीट टच द रिकॉर्ड फिगर ऑफ कितना? 2000। क्लिक कीजिए। ओके, अब देखो ये डेटा तो चेंज होता रहता है, बट ठीक है। अगला, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? अब देखो इसमें देखना क्या ट्रू उसके रिगार्डिंग। तो इट एम्स एट फर्दर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड राइस इन द ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन। देखो जो एरिया ऑलरेडी बेनिफिटेड है उसमें सेकंड फेज में क्यों डालेंगे? सेकंड फेज में तो वहाँ अप्लाई करेंगे ना जहाँ पे नहीं है, तो पहला ऑप्शन काट दो, जहाँ जहाँ पहला है उसको काट दो। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, दो तो सही। इट एम्स एट एक्सटेंडिंग सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, यही अगले एक ऑप्शन में था, सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, टू एरिया विच हिथरतो कुड नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। एकदम बात सही है। अगला, इट एम्स एट इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप अदर देन दोज यूज्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन द बिगनिंग। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। इट एम्स एट इंटीग्रेटिंग क्रॉपिंग विद एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। हाँ सही बात है, इनको भी बेनिफिट करने का प्लान था इसमें। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 और 4 इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बाय यूजिंग द गिवन कोड। ओके, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, सही बात है। इरीगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड एंड मार्केटिंग, ये सारा इंप्रूव हुआ। ठीक है, ऑल 4। अगला, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द इंडिया। एकदम बात सही है। रीजनल डिस्पैरिटी हैव बीन एग्रेव्ड ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, ये भी बात सही है, लेकिन इसके कारण ये रीजन नहीं है। तो दोनों करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। देखो इस बार इन्होंने, ये जनरली बी ऑप्शन पे होता है, इन्होंने इस बार ए पे दे दिया, तो इसका ध्यान रखिएगा ए बी का, कि भाई ऐसा नहीं कि आप सीधा आपको पता है बी लगा के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। आप इसको ए बी ध्यान से पढ़िए क्या ऑप्शन है, उसके बाद टिक करिए। ओके, रेनबो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ देवो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, सभी से मैच करना है आपको। देखो इसमें डायरेक्टली देख लेते हैं, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन व्हाइट रेवोल्यूशन, फिशरीज ब्लू रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर ग्रे रेवोल्यूशन। देन पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद किससे? ओनियन से। द ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से, पता है आपको, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। अगला, इसमें सारे मैच करने हैं, सीधा मैच यहाँ से कर लेते हैं, हाथ दिए रखा है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये दोबारा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ओके, देखो गोल्डन हॉर्टिकल्चर है, व्हाइट आपका मिल्क है, ब्लू पोल्ट्री नहीं है, फिशरीज और ओशियन से रिलेटेड है, तो ये काट दो। ओके, ग्रीन आपके एग्रीकल्चर से है ये। देन आगे आता है ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू मतलब फिशरीज या ओशियन, तो फिशरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू फिश कहीं है, हाँ फिशरीज है। एमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू द ब्लू रेवोल्यूशन, कौन है? पीसी कल्चर। ओके, एमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू द ब्लू रेवोल्यूशन, पीसी कल्चर। ओके, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे? फिश प्रोडक्शन। जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल वाज डेवलप्ड एज, कहाँ पे? जीवी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। देखो ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी, इसी मेनली काम हुआ है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू द रेवोल्यूशन इन इंडियन इन द एग्रीकल्चर।
ओके कौन सा रिलेटेड नहीं, देखो ब्लू पोल्ट्री से नहीं है, ब्लू फिशरीज से है, बाकी व्हीट मिल्क और ग्रीन फूड गोल्डन हॉर्टिकल्चर है, सारे सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी नहीं है इसको देखेंगे, शुगर केन है, कॉटन है, बनाना है, बाजरा नहीं, बाजरा तो क्रील है। ओके